Good afternoon. Do you know my topic? Holistic assessment. सुन के कैसा लग रहा है कि फिर से वही? Yes, फिर से वही है. But it is somehow one type of revision for you. इतने सारे सुबह से ही पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग, पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ते सेम टॉपिक और जो जरूरी चीजें हैं वही सब है. तो मैं चाहूंगी आप लोग मेरे साथ एक एक्टिविटी करें. All of you have, I think all of you must have attended workshop for toy pedagogy. There they taught us many types of energizer. एक brain gym game है, उसको थोड़ा करते हैं. All of you join your fingers like this. ऐसे join करें. Yes, yes, very good. Thumb with thumb, little finger with little finger, like this. And now you move your fingers, thumb. एक दूसरे से टच नहीं करना चाहिए, ऐसे उसको घुमाइए. इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑल्सो. ये थोड़ा आसान है. नाउ लिटिल फिंगर को भी घुमाइए. एक दूसरे को टच नहीं करना चाहिए, ऑपोजिट डायरेक्शन में. देन रिंग फिंगर. See how many of you can do this for ring finger. I am not able to do, but for index I can do. For index I can do. I can move like this, and in opposite direction also I am able to do. Okay. This is one type of brain gym. When I do this game in class, many children tell they know, they are able to do this. They are very intelligent. कुछ फिजिकल एक्टिविटी होता है, हम सोचते हैं कि जो इंटेलिजेंट है वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते, बट फिजिकल एक्टिविटी भी बच्चे बहुत कर सकते हैं. तो असेसमेंट ऐसे ही है, सिर्फ नॉलेज नहीं, फिजिकल एक्टिविटी को भी असेस किया जाना चाहिए. सो लेट मी प्रेजेंट माय पीपीटी. Is it visible? No, ma'am. Sir, pardon, sir. Not No. No, अभी तक नहीं. not visible, ma'am. not visible. Is it visible? Yes, ma'am. मत दिखा. For a while it was visible. Pratima madam, share it in our group. So I will try.
Jankar Salam, I'm giving the link. Huh? You just present. अच्छा लिंक है उसका. I am sharing, sir. I am sharing. Just a minute, sir. My PPT I am sharing, sir. Okay. In group, sir. In group I am sharing. In Okay, you share it, madam. is it visible now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. It is hanging, sir. Hang हो रहा है. It is visible. दिख रहा था ना? हाँ मैडम, हम प्रेजेंट कर रहे हैं, आप देख लीजिए इसको. Okay. Okay, sir. Next slide. Next slide. Okay. Objective. We know when we start anything, any course, any meeting, anything, there we have to follow some objective. We have to achieve some objective. So objectives are here like this. After going to the module, you will definitely able to define what is assessment and key features of assessment, differentiate various forms, practice of assessment, define what is holistic assessment, explain the need, benefits of holistic assessment, implement the method of holistic assessment. Before this, I would like to say something that you already have learned many things about assessment, evaluation, test, measurement. Anand sir and Kuali madam, they have already touched many part of this assessment also. Kuali madam really explained many things of this. This is a revision, but we have to go through this. Let's see how when we assess, how we can follow the patterns. So next slide. List of containment, what here we have, it is a list. Just I'm reading out this. Some questions are there. We will say yes or no. We can answer like this, yes or no. Then we are doing evaluation. Whether we are doing in such in a true spirit or not, do we evaluate? Introduction of assessment, evaluation, assessment, and testing. Three. We see all are liking, but there are some differences. What is assessment? Types of assessment, features of assessment and affecting factors, function of assessment, assessment practices, holistic assessment, need and benefits, dimensions, core concept of holistic assessment. Next, sir.
नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा। डिड यू हैव अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर योर स्पेशल इंटरेस्ट एट स्कूल? आप जो चाहते हैं आप सच में वो कर पाते हैं कि नहीं, ये यहाँ पर आपको यस नो आप अपने आप को पूछना है। डिड यू हैव मल्टीपल टाइप ऑफ टेस्ट असेसमेंट थ्रू आउट द ईयर? हम भले ही पीरियडिक टेस्ट करते हैं या सेशन एंडिंग या हाफिली करते हैं, इन बिटवीन वी टेक मेनी टेस्ट। फॉर्मल नहीं होता है, हम लोग बहुत सारे टेस्ट ऐसे ही करते हैं। कभी ऑब्जर्व करके टेस्ट करते हैं, कभी ओरल टेस्ट कर लेते हैं, कभी कभी उसका बिहेवियर देख के भी हम लोग टेस्ट करते हैं जिसको हम लोग नोट डाउन नहीं करते हैं। डिड यू हैव फ्लेक्सिबिलिटी इन असेसमेंट? कभी कभी आपने किया जरूर होगा प्रोजेक्ट में, अगर आपने 10 दिन का टाइम दिया है या 6 मंथ्स का टाइम है, उसमें भी कोई भी और एनरिचमेंट में आपने कुछ दिया हो और बच्चा नहीं कर पाया, आप लिबरल हो कि थोड़ा सा उसको टाइम दे देते हैं। तुम कल आज नहीं कर पाए, कल तुम एनी करके ले आना। थोड़ा सा लिबरल तो हम लोग बन ही जाते हैं। डिड यू हैव डिफरेंट मोड्स ऑफ असेसमेंट? या सारे हमारे हैं। वेयर यू टेस्टेड all 3 domains of learning? Do you know all the 3 domains? Can anyone tell? अभी आप लोगों ने डिस्कशन भी कर लिया है इसके ऊपर। यस, Cognitive, affective, and psychomotor. yes sir, very good. This is cognitive means knowledge, affective means emotion, related to emotion, and affective means related to emotion. And one more I'm leaving, that is psychomotor domain. आजकल इसको थोड़ा सा अलग करके 4 भी कर दिया है, जैसे इमोशन और स्पिरिचुअल भी कर दिया गया है। एक कॉग्निटिव वाला तो नॉलेज बेस्ड है ही, और एक साइकोमोटर है ही, बाकी को इमोशन और स्पिरिचुअल भी अलग अलग कर दिया है। बट डोमेन्स आर 3 इन एजुकेशन, 3 डोमेन्स आर देयर। वेयर यू असेस्ड बाय पीयर एंड पेरेंट्स, ये भले ही पीयर असेसमेंट तो हम लोग जान ही रहे थे कुछ दिनों से, बट पेरेंट असेस करेंगे ये हमारे लिए बिल्कुल नया है। वेयर यू स्केयर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एट स्कूल, ये हमारे जमाने में भी होता था, हम लोग बहुत डरते थे एग्जाम से। हैड योर प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड मेंशन एक्विजिशन ऑफ एनी स्किल्स, ये आप लोग को याद होगा। ये सारी तो है नहीं हमारे रिपोर्ट कार्ड में, लेकिन कुछ दिन से पहले हम लोग का रिपोर्ट कार्ड में कुछ बिहेवियरल एस्पेक्ट को भी एसेस किया जाता था, जो अभी हमारे रिपोर्ट कार्ड में नहीं है। नेक्स्ट सर। मैंने बोला हम लोग बहुत सारे टेस्ट करते हैं, इसमें बहुत कुछ दिया हुआ है, ये सारे हैं, पर जिसका हम डॉक्यूमेंट मेंटेन नहीं करते हैं। कभी दिमाग में आया ही नहीं कि कोई बच्चा अगर सच बोलता है, कहीं उसको पैसा मिला, उसने रिटर्न किया हमको, तो हम उसका डॉक्यूमेंटेशन करें कि इस तारीख को इस बच्चे ने एक गुड बिहेवियर उसने शो किया था। तो यहाँ पर इसी तरह का बहुत सारा एक्टिविटी लिस्ट आउट है, इसको हम इवैल्यूएट करते हैं कि नहीं। अ चाइल्ड हु मेंटेन डिसिप्लिन द क्लास एज मॉनिटर, आज अगर वो मॉनिटर हो के क्लास को माइंड कर सकता है, आगे जाके वो हो सकता है एक ग्रुप को अच्छे से डील कर पाए, लीड कर सकते, एक ग्रुप को अच्छा लीड कर पाएगा। कहीं भी कुछ असाइनमेंट दे दिया जाए तो वो वर्क डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छे से कर पाएगा, सबको डिसिप्लिन में रख पाएगा। अ चाइल्ड हु अरेंज वेरियस सीसीएस फंक्शंस इन द स्कूल एज एन इवेंट मैनेजर, अब जब हम जान गए हैं कि इस तरह का भी हो सकता है, हम लोग हमेशा जो टीचर्स होते हैं हमेशा बच्चों की हेल्प लेते हैं। कभी सीसीए कंडक्ट कराते समय अगर बच्चे नहीं पहुंच पाए तो कुछ लीडर्स को भेजते हैं कि तुम जो पार्टिसिपेंट्स उनको लेके आओ, तो उसका इन्वॉल्वमेंट वहाँ जरूर है। लेकिन अगर हाई लेवल पे हम देखने जाएंगे तो इवेंट मैनेजमेंट कर पा रहा है कि नहीं, उसको वो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी हम दे सकते हैं। A child who is specially popular helps friend as an extrovert. कुछ
इंट्रोवर्ट तो बहुत सारे हैं, जो एक्सट्रोवर्ट हैं हमारे बोलने से पहले अपने आप आगे जाके हेल्प करें। हो सकता है हम सारे बच्चों को ये सिखाने की कोशिश करें, पर इनबिल्ट भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इस तरह का बिहेवियर शो करते हैं। हम क्या उनको इवैल्यूएट करते हैं? अ चाइल्ड हु एक्सेल इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स एज स्पोर्ट्समैन, हाँ इसको हम लोग गेम्स में उसको ग्रेड देते थे। जो स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं ग्रेड गेम्स में अच्छे होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। अ चाइल्ड हु पार्टिसिपेट इन को करिकुलर एक्टिविटी स्पॉन्टेनियसली, ये सबसे बहुत जरूरी होता है। कोई सिचुएशन सर और मैडम आपको कोई सिचुएशन ऐसा याद है कि स्पॉन्टेनियसली कभी बच्चे की जरूरत हुआ हो कि उसको किसी को ऐसे इन्वॉल्व किए हो, आप लोग स्पॉन्टेनियसली आपने इन्वॉल्व कर लिया हो और उसने बेटर किया हो? हाँ सर, हाँ कर लेता है। मैं ये कहाँ देखी हूँ, ये असेंबली के समय में देखी हूँ कि किसी दिन अगर किसी बच्चा प्लेज बोलने वाला बच्चा अगर एब्सेंट हो जाता है, अगर हम किसी को खड़े करते हैं तो बच्चे हमारे इतने यूज टू है प्लेज बोल लेते हैं। और चाइल्ड हु कीप्स क्लीनलीनेस एंड हाइजीन, ये हम ड्यूटी तो देते हैं पर उसको इवैल्यूएट नहीं करते। क्लीनलीनेस मॉनिटर तो रखे हुए हैं, हाइजीन मॉनिटर रखे हैं, पर उसको इवैल्यूएट नहीं करते हैं। अ चाइल्ड हु वॉलंटियर्स इन सीसीए एंड अदर एक्टिविटीज सेम। अ चाइल्ड हु इज पंक्चुअल एंड रेगुलर इन अटेंडिंग स्कूल। मुझे याद है मैं जब छोटी थी हम लोग पढ़ते समय फुल अटेंडेंस जिनका होता था उनको प्राइज दिया जाता था, पर ये प्राइज दिया जाता था रिपोर्ट कार्ड में उसको नहीं शो करते थे। पर क्या हम कर सकते हैं इस तरह, इसको इवैल्यूएट कर सकते हैं? ये भी आज के डेट पे एक क्वेश्चन है। A child who is honest and sincere in doing assignment, ये somehow हम लोग इवैल्यूएट करते हैं। जैसे कि कॉपी में हम कुछ असाइनमेंट दिया तो अगर कोई रेगुलर करता है हमारे मन में बैठा रहता है कि इसको कुछ काम दे देंगे, ही इज सिंसियर, सी इज सिंसियर, सी विल डेफिनेटली डू द वर्क एंड सी विल डेफिनेटली कंप्लीट द वर्क इन टाइम। ये हमारे दिमाग में एक बैठा रहता है कि ये बच्चे कर सकते हैं। यही सारी चीजों को अगर हम देखते हैं कभी हमारे दिमाग में बैठा हुआ है तो हमको इस सबको इवैल्यूएट करना चाहिए। तो किस हद तक हम कर सकते हैं वो आके देखते हैं। सर नेक्स्ट सर। ये एक इंट्रोडक्शन है असेसमेंट के लिए। कहाँ से डेफिनेशन जैसा दिया हुआ है। आई एम रीडिंग आउट। Cambridge Dictionary defines assessment as the act of judgment or deciding the amount, value, quality or importance of something or the judgment of decision that is made. ये एक तरह का असेसमेंट का डेफिनेशन दे रखा है जैसे इंट्रोडक्शन के लिए। हम लोग जैसे जैसे आगे आगे थोड़ा सा एक्टिविटी के साथ उसको जोड़ेंगे, विल डेफिनेटली क्लियर अबाउट व्हाट इज असेसमेंट। Educational assessment is the systematic process of documenting and using empirical data on the knowledge, skill, attitude, aptitude, and beliefs to refine programs and improve student learning. Our present age is characterized by the increasing importance of information and communications technology, the decline of functional skill-based professions, and increasing competition. Today, knowledge alone is not sufficient. We know it is already धीरे धीरे प्रूफ हो रहा है कि knowledge is not sufficient. And for today, knowledge alone is not sufficient for long educational assessment stressed on linear measurement of cognitive functions. Hence, there is need for holistic learning of assessment. कुछ चीजें देख के हमको लगता है कि अगर नॉलेज को ही सिर्फ हम एसेस करेंगे दैट इज नॉट एनफ, तो और क्या क्या हम एसेस कर सकते हैं। सर नेक्स्ट।
ये अभी सर ने भी क्लियर कर दिया था, आनंद सर ने भी, और कोहली मैडम ने भी क्लियर कर दिया था। यहाँ पर एक सिचुएशन दिया गया है, यू ऑफर्ड अ केक टू 2 फ्रेंड्स, they are giving their opinions. After eating the cake, they are giving their opinions. First friend, he told, it's small but delicious. And second friend told, I would use less sugar and bake it for some more time. Here we have to find out which one is, who is assessing and who is evaluating. कोई बोल पाएंगे किसी? First friend is assessing. Yes. Evaluation means एक जजमेंट तक पहुंच जाते हैं। हाँ हाँ, yes, very good sir. Next slide. सेम थिंग इज गिवन हियर, एक अलग एग्जांपल है ये। फर्स्ट कुछ असाइनमेंट मिलता है। फर्स्ट, ड्राइव फॉर 10 meters, turn left, drive another 10 meters, turn right, drive for another 10 meters, and again turn right and drive for 10 meters. Reach from where you have started. ये फर्स्ट असाइनमेंट है। आफ्टर दैट असाइनमेंट व्हाट दे डिड, they gave license. You were issued a driving license. Here also we have to see which one is test and which one is evaluation. जैसे कि देखिए, हाँ 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 मैम, यस मैम। Ma'am, first one is test. First one is test, ma'am. हाँ, फर्स्ट वन इज टेस्ट And second one is evaluation. इवेल्युएट करके उन्होंने जो ये कर रहे थे, इश्यूइंग अथॉरिटी जो है, उनको ये समझ में आ गया कि ये टेस्ट क्लियर कर पाए और ये आगे ड्राइविंग कर सकते हैं। दैट्स व्हाई दे इश्यूड अ ड्राइविंग लाइसेंस। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट सर, थोड़ा सा यहाँ थोड़ा सा जैसे बताया गया है टेस्टिंग और इवैल्यूएशन का एक कंपैरिजन है। टेस्टिंग मेजर्स द लेवल ऑफ स्किल और नॉलेज दैट हैज बीन रीच्ड। इवैल्यूएशन इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग जजमेंट। ये दोनों में ही एंड में ही होता है, बट यहाँ प्रोसेस में जाने के बाद और यहाँ एविडेंस को देखने के बाद इवैल्यूएशन होता है, और टेस्ट जो है डायरेक्ट ही होता है। नेक्स्ट, अभी हम देखेंगे असेसमेंट क्या है, उसमें क्या क्या फैक्टर है, क्या है। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी, जो हम लोग ऑलरेडी देखते आए हैं इवैल्यूएशन और असेसमेंट का, तो ये आप लोग जरूर आप लोग का एक क्लियर हो पाए होंगे कि जो असेसमेंट है वो एक प्रोसेस है, और इवैल्यूएशन जो है वो प्रोडक्ट बेस्ड है। लास्ट में जो स्टैंडर्डाइज होता है वो वहां तक हम पहुंच जाते हैं। जैसे आप लोगों ने देख लिया असेसमेंट, जैसे कि कोहली मैडम पढ़ा रही थी, जैसे बता रही थी, तो कहाँ हम जजमेंट कर रहे हैं और कहाँ नॉन जजमेंटल रहते हैं, और कहाँ प्रोसेस है और कहाँ प्रोडक्ट है। इस तरह का कंपैरिजन में अगर हम देखने जाएंगे तो यह हम लोग को थोड़ा क्लियरली समझ में आ जाएगा कि असेसमेंट और इवैल्यूएशन में क्या डिफरेंस है। सो assessment is an act of measurement. It is also a test. It is an examination, tool of selection, and check of progress. All this can be done under assessment. Yes, sir. Because it is a process. Assessment is a process. तो आपका क्लियर करने के लिए सर नेक्स्ट कर दीजिए सर। यहाँ देखिए एक गेम है,
फॉर क्लैरिटी इवैल्यूएशन क्या है, असेसमेंट क्या है, यहाँ अगर हम इसको पढ़ेंगे सारे वर्ड्स जो रिलेटेड असेसमेंट और इवैल्यूएशन का दिया हुआ है, एंड इफ वी विल डिवाइड दिस वर्ड्स and arrange these words in two groups, then we will definitely segregate these two. Evaluation and assessment, जब भी कोई word आएगा हम अलग कर पाएंगे. तो एक एक जन आप बोल सकते हैं. पहला word है, the first word is summative. Under which category will it come? Evaluation or assessment? Summative कहाँ आएगा? Evaluation. Very good. Evaluation. Next one. It is echoing, no? Echo हो रहा है क्या? माइक्रोफोन प्रीति मैडम ऑफ कीजिए. हाँ, यस मैडम. हाँ, yes. Next word is narrow. Narrow किसके अंदर में? Second one will be in assessment. अच्छा, सोनिया मैडम बोलिए. नैरो जो है असेसमेंट में आएगा. ओके. थर्ड वर्ड इज क्वांटिटेटिव. असेसमेंट मैम. आप थोड़ा सा नोट करके रखे रहिए सर. हम बाद में चेक भी करेंगे वेदर यू आर करेक्ट और नॉट. ओके मैम. जो आप लोग जो बोल रहे हैं अपना पेन से थोड़ा वो नोट करके रखिए. यू टोल्ड दैट समेटिव विल कम अंडर इवैल्यूएशन, नैरो विल कम अंडर असेसमेंट एंड क्वांटिटेटिव विल आल्सो कम अंडर इवैल्यूएशन. ओके. नेक्स्ट वन इज ग्रेडिंग. ग्रेडिंग किस में आएगा? इवैल्यूएशन. अच्छा. प्रोसेस ओरिएंटेड. असेसमेंट. प्रोसेस ओरिएंटेड असेसमेंट. नेक्स्ट फॉर्मेटिव. Assessment will be assessment. Is also in assessment. सोनिया में बहुत सारा जवाब दे रही है, बाकी सब नहीं बोल रहे हैं. डायनामिक the word dynamic. Evaluation. Assessment. डायनामिक इवैल्यूएशन. Assessment. सोनिया मैडम मेरी बच्ची है. हाँ बोलिए. डायनामिक किस में आएगा? डायनामिक किस में आएगा? Evaluation. असेसमेंट में. इवैल्यूएशन. Broad is broad. Broad means Evaluation. Assessment. okay, evaluation. Non-grading. असेसमेंट. Assessment. Okay, assessment. Next one is qualitative. असेसमेंट. Qualitative assessment. Product oriented. Assessment. इवैल्यूएशन. All are agreed. Product oriented evaluation. Product oriented. Okay, Yes, ma'am. Okay. Non-judgmental. Assessment. Non-judgmental assessment means judgmental evaluation. Then one word is there, static. Evaluation. Static. Evaluation, ma'am. Yeah. Okay, let's see. Sir, next. हाँ, यहाँ पर देखिए आप अपना आंसर देखिए. मुझे लग रहा है मोस्ट सभी ने सही आंसर ही दिया था. सिर्फ ये स्टैटिक और डायनामिक में ही थोड़ा सा इधर उधर हो रहे थे. नहीं मैडम, एक गलत था. किसी ने नैरो को बोला था इसमें. अच्छा. एक्चुअली इवैल्यूएशन जो है ब्रॉड है, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट वगैरह सब ब्रॉड सेंस में ही लिया जाएगा. इवैल्यूएशन एकदम अचानक से एक टेस्ट कर दिया और इवैल्यूएट कर देते हैं, ऐसा नहीं है. और असेसमेंट जैसे है हम प्रोसेस में ही जाते हैं. आगे हम इम्प्रूवमेंट के लिए, जैसे फीडबैक टाइप का, आगे हम इम्प्रूवमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, तो उस तरह का है असेसमेंट. तो वो थोड़ा सा आपका छोटे टेस्ट को क्रॉस करके ही जाएगा. नेक्स्ट सर. यहाँ देखिए बहुत सारे असेसमेंट के जो फंक्शन है, हम क्या क्या कर सकते हैं. यहाँ ये भी थोड़ा सा जानना जरूरी है. जैसे कि रिकॉर्ड स्टूडेंट अचीवमेंट इन लर्निंग, ये असेसमेंट में
आप जब तक रिकॉर्ड नहीं रखोगे, आप एक फीडबैक कैसे दे पाओगे कि तुम किस चीज में अच्छा कर रहे हो और किस चीज में और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, कहाँ स्ट्रेस देने की जरूरत है, किस एरिया में आपको और इम्प्रूव करने के लिए आपको थोड़ा सा दूसरे चीजों से ज्यादा आपको समय देना है या आपको इनपुट देना है। तो स्टूडेंट अचीवमेंट का रिकॉर्ड बहुत जरूरी है। ग्रेड और मार्क्स समाओ हम लोग देते हैं असेसमेंट में भी, जैसे कि वो फाइनल नहीं होता है। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट, ये तो है ही, इंफॉर्मेशन आप स्टूडेंट लर्निंग बारे में देते हो। प्रोवाइड सर्टिफिकेशन, जो फाइनल सर्टिफिकेट नहीं होता है असेसमेंट में कि तुम वेरी गुड हो, आउटस्टैंडिंग हो, इस तरह का सर्टिफिकेट नहीं देते हैं, पर सब्जेक्ट वाइज हम कुछ सर्टिफाई कर सकते हैं। यू आर वेरी गुड इन इंग्लिश, इस तरह का, और किसमें आपको थोड़ा सा और स्ट्रेस देने की जरूरत है। प्रोवाइड सपोर्ट टू स्टूडेंट टू इम्प्रूव लर्निंग। आपने जब यू हैव ऑलरेडी gone through the achievements record of students, you have decided, you found that the student is doing very well in one area and he or she needs some support, so you have to support the student to improve that area also. Provide feedback to students, diagnose students difficulties. यही चीज हम नहीं कर पाते हैं, यही चीज जो है हम नहीं कर पाते इन द सेंस इतने सारे बच्चे हैं और हमारा ड्यूटी में ये स्टूडेंट नहीं कर पा रहा है तो हम उसको वहीं पर छोड़ देते हैं, थोड़ा सा कोशिश करते हैं और छोड़ देते हैं, पर उसका इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं है। और आज इस किसी कम लेवल पे अगर वो है तो क्यों है। अगर बैकग्राउंड में जाना चाहेंगे थोड़ा सा, जैसे हम लोग को पहले भी बोला जाता था, एक्शन टेकन रिपोर्ट जैसे होता था, एक्शन रिसर्च सॉरी, तो किसी बच्चा अगर इस तरह है, हम एक्शन रिसर्च पे जाते थे कि उसका डिफिकल्टीज क्या है। अगर बियॉन्ड एकेडमिक है तो भी थोड़ा सर्च करते थे कि किस कारण से वो नहीं पढ़ पा रहा है। तो यहाँ टीचर एक डायग्नोस्टिक पार्ट है, तो यहाँ टीचर कर सकता है कि स्टूडेंट डिफिकल्टीज क्या है, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। Promote understanding of learning goals. Develop metacognitive skills. Metacognitive means एक थॉट प्रोसेस बच्चे का क्या है, उसको समझ आना चाहिए कि वो जो सोच रहा है उस हिसाब से उसको एक्सप्रेस कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो इस तरह का भी ओवरऑल अगर हम कभी एकेडमिक को साइड करेंगे और इस तरह का बच्चों के साथ एंगेज करेंगे, बच्चों को इस तरह का बातचीत करेंगे, तो हम बच्चों के बारे में भी बहुत कुछ जान सकते हैं, जो आज के डेट पे बहुत जरूरी है। सिर्फ बच्चा कितना पढ़ा, कितना सीखा, उतना छोड़ के भी उसका बिहेवियर पार्ट में भी कहाँ वो अच्छा कर रहा है, कहाँ और उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है, हम वो सब भी हम देख सकते हैं। तब जाके हम उस चीज को एसेस करेंगे। आगे सर, नेक्स्ट। इसमें मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा बोलने की जरूरत है। You already have gone through all these things. Kueli madam already explained this one very nicely. आपको इम्पोर्टेंट किस पे देना है। पहले जैसे हम लोग असेसमेंट ऑफ लर्निंग में हम लोग ज्यादा ध्यान दे रहे थे, अभी जैसे असेसमेंट एज लर्निंग में हमको ज्यादा ध्यान देना है। और ध्यान देने का मतलब ये है कि असेसमेंट हम अगर करेंगे, जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम डायग्नोस नहीं कर पाएंगे कि बच्चे इंडिविजुअल बच्चे किसमें, उनको कहाँ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो मुझे जहाँ तक लगता है ये सब आप समझ गए हैं, लेकिन इसके बेसिस पे कुछ वर्ड लिंक टू वर्ड है, उसको हम अभी देखते हैं। नेक्स्ट सर। बस नहीं सर, थोड़ा रहने दीजिए। ये देखिए कुछ लिंक टू वर्ड है जो असेसमेंट फॉर लर्निंग में इसमें लिखा हुआ है। मुझे जहां तक ये वाला लगता है, हैपेंस इन मिडिल ऑफ लर्निंग,
ये सब अच्छे से मैच करता है क्योंकि ये डायग्नोस्टिक भी है और इसमें हम प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो फॉर्मेटिव टेस्ट वगैरह कर सकते हैं और कलेक्ट वाइड रेंज ऑफ डाटा भी इसमें हो सकता है और यू ऑलरेडी नो ये डायग्नोस्टिक टाइप का भी है। नेक्स्ट सर। ये देखिए ये वाला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जहां पर स्टूडेंट खुद इन्वॉल्व है, उस ग्रुप में भी वो इन्वॉल्व है, वो खुद अपने आप को भी मॉनिटर कर सकता है, अपने आप को एसेस भी कर सकता है और ये हमेशा प्रोग्रेसिव है। उसके फ्रेंड सर्कल में ग्रुप में वो क्या कर रहा है, अपने आप को भी एसेस कर रहा है और जो जिनके साथ वो है वो भी उसको एसेस कर रहे हैं। मतलब ये मोस्टली देखने जाएंगे तो मोस्ट प्रोग्रेसिव ये वाला है। ये इसका नाम भी दिखा दीजिए सर। एज लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग। दिस इज असेसमेंट एज लर्निंग। अभी जैसे हम लोगों ने भी पहले भी पढ़ा है कि दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट असेसमेंट एज लर्निंग, क्योंकि इसमें स्टूडेंट ओरिएंटेड है, चाइल्ड ओरिएंटेड है और खुद स्टूडेंट भी इन्वॉल्व है और अपना इम्प्रूवमेंट के लिए खुद भी जिम्मेदार है। और हमको ऐसे सिचुएशन क्रिएट करना है जहां वो खुद इन्वॉल्व हो पाए और अपने आप को मॉनिटर करने के लिए उसको मौका मिले। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे असेसमेंट का क्या स्ट्रेटेजी बनाएंगे, किस तरह का एक्टिविटी देंगे ताकि वो उसमें वो इन्वॉल्व होगा और खुद जान पाएगा कि मैं कितना कर पा रहा हूँ और मुझे और कितना दूसरों से सीखना है। ठीक है सर। नेक्स्ट। ये अंडरस्टूड है, ये हम लोग पहले भी करते थे असेसमेंट ऑफ लर्निंग, जो कि एंड ऑफ द एक्टिविटी। कोई भी जैसे कि हम एंड में जो टेस्ट लेते हैं, बहुत सारे टेस्ट हो जाने के बाद उसका एसेस करके या तो हम लोग कुछ जजमेंट देते हैं या कुछ निकालते हैं। इस तरह का ये हर समय हम लोग क्या करते थे कि एक यूनिट का टेस्ट, पूरा यूनिट खत्म हो गया, फिर हम टेस्ट लेके बच्चे को बोल दिए कि तुम्हारा क्या है उसमें, आउटस्टैंडिंग हो तुम, एक्सेलेंट हो, क्या हो। इस तरह का जो हम लोग एक फाइनल प्रोडक्ट की तरफ देख करके उसको एसेस करते थे। तो ये है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ये पहले हमेशा चलता ही आ रहा था। हम लोग कुछ बाद में जैसे नाम दिया गया फॉर्मेटिव टेस्ट, तो बीच बीच में जो क्वार्टरली एग्जाम होता है उसको फॉर्मेटिव टेस्ट दिया गया। इसका मतलब है फॉर्मेटिव टेस्ट हम फाइनल बच्चे को बता नहीं रहे हैं कि तुम अच्छा नहीं हो, अच्छा हो, ऐसा हम नहीं बता रहे हैं। इसमें हम डायग्नोस करेंगे कि बच्चे का इस सब्जेक्ट में कमजोर है, उसको आगे और उसको फीडबैक दिया जाएगा और आगे उसको सपोर्ट दिया जाएगा और अच्छा करने के लिए। कब तक? हम जब असेसमेंट ऑफ लर्निंग करेंगे तब तक इसको वो अच्छा कर लेना चाहिए। उसको बोलते थे समेटिव टेस्ट करके। फॉर्मेटिव टेस्ट के बाद समेटिव टेस्ट आता था। तो वो समेटिव टेस्ट जो है वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता था। नेक्स्ट। ये देखिए मैंने जो फॉर्मेटिव और समेटिव की बात कही, सर वो एग्जाम्पल थोड़ा दिखा दीजिए। यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल दे रखा है। व्हेन अ कुक टेस्ट इट, it means that the soup, when a cook tastes the soup, it is formative. When the guest tastes it, it's the summative. मतलब गेस्ट जब टेस्ट करते हैं और कोई चेंज नहीं कर सकते हम लोग उसमें। अब नमक ज्यादा है, कम है, कुछ भी हमको और नहीं देखना है। फाइनल टेस्ट करने के बाद गेस्ट अपना ओपिनियन दे के चले जाएंगे कि वो डिलीशियस था या उसमें थोड़ा सा और बॉयल होने की जरूरत था या कुछ कमी था, वो गेस्ट बता देगा और हम उसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट और नहीं कर सकते। तो ये है समेटिव टेस्ट। और जब खुद ही टेस्ट करता है
खुद ही टेस्ट करता है तो उसको समझ में आ जाता है कि मैंने नमक थोड़ा कम दिया तो और थोड़ा सा डालूं, या मुझे और नमक ज़्यादा हो गया तो मैं किसी और चीज़ का यूज़ करूं ताकि वो मेकअप हो जाए। उस तरह का कुछ सोच के उसको आगे डायग्नोस कर लिया कि अभी नमक ज़्यादा हो गया है, उसको आगे तैयार करने की कोशिश कर रहा है। दैट इज़ फॉर्मेटिव। हम लोग भी ऐसे ही करते थे। फॉर्मेटिव टेस्ट में छोटे छोटे कम लेसन का टेस्ट होता था, फिर पता चल जाता था कि हमारे स्टूडेंट किस में लैगिंग बिहाइंड है, तो हम उनको सपोर्ट देके उनको आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट सर, यहाँ पर की फीचर्स दिया हुआ है, बहुत सारे 4 की फीचर्स होते हैं, जैसे कि ये वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, इक्विटी, मैनेजेबिलिटी। ये बहुत मायने रखता है असेसमेंट के लिए। जैसे आनंद सर ने भी समझाया, वैलिडिटी है कि नहीं। आप एक क्वेश्चन ले रहे हो और वो वैलिड नहीं है उस ग्रुप के लिए, और आप उस क्वेश्चन को लेके उनको टेस्ट करोगे, यू विल नॉट गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। आप जो चाहते हो, जो एसेस करना चाहते हो, वो नहीं होगा। तो ये 4 पॉइंट्स है, इसको भी हमको ध्यान में रख के हमको असेसमेंट का जो भी स्ट्रेटेजी हम करेंगे, इस सारे चीज़ों को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। और वैलिडिटी, डज द असेसमेंट मेजर्स what it says it measures? Are the inferences drawn from student performance and any decision based on these inferences are reasonable or fair? ये जब तक ये नहीं होगा, हमारा करने का कोई मतलब नहीं रहेगा टेस्ट लेने का। तो रिलायबिलिटी भी है, विश्वसनीय होना चाहिए थोड़ा बहुत। तो ये चारों की पॉइंट अगर थोड़ा सा ध्यान में रखा जाए। इक्विटी भी थोड़ा सा देख लीजिए। डज द असेसमेंट अलाउ ऑल द स्टूडेंट टू डेमोन्स्ट्रेट व्हाट दे नो एंड कैन डू विदाउट बीइंग अनफेयरली डिसएडवांटेज्ड बाय इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये मुझे भी लगता है कि जैसे आप अगर सोच रहे हो कि उसमें कुछ उसका अपना कैरेक्टरिस्टिक के कारण कम पड़ रहा है, नहीं कर पा रहा है, तो हमको उसमें हेल्प करना चाहिए कि उस जिस लेवल का है उस लेवल का उसको हम उस स्ट्रेटेजी में उसको एसेस करें। और मैनेजेबिलिटी का तो दिखा रहा है कि ये फिजिबल होना चाहिए। आपने 40 मिनट्स का टेस्ट लिया है और क्वेश्चन 100 क्वेश्चन दे दिया है, वो फिजिबल है कि नहीं है, आप देखेंगे कि वो आपका फिजिबल हो रहा है कि नहीं, तभी जाके उस टेस्ट का कोई मायने रहेगा। बच्चे 40 मिनट में उसको परफॉर्म कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह का ये 4 पॉइंट को अगर हम ध्यान में नहीं रखेंगे तो हो सकता है हमारा जो एम है असेसमेंट का वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। ठीक है सर। नेक्स्ट, बोला गया है 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग वैलिडिटी। वैलिडिटी में कुछ जो एक्सप्लेन करना है, क्या क्या फैक्टर्स जो होते हैं वैलिडिटी को भी अफेक्ट कर लेंगे, जैसे कि लेंथ ऑफ टेस्ट। हाउ मच शुड बी द लेंथ ऑफ द टेस्ट। आपको पहले डिसाइड करना होगा कि मैं किस तरह का टेस्ट ले रहा हूँ और उसमें कितने मार्क्स का और कितने चैप्टर में लूँ, या उसका नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होने चाहिए। अनक्लियर डायरेक्शन, आप क्वेश्चन दे रहे हो, आप चाहते हो कि स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन जानता है कि नहीं, मुझे पता करना है, और आपको उसी तरह का क्वेश्चन देना है मल्टीपल बेस, तभी आपको पता चले कि बच्चा मल्टीपल सीख गया है कि नहीं। और डायरेक्शन आप इस तरह देंगे कि स्टूडेंट जो है मल्टीप्लाई ही करेगा। ऐसा नहीं कि डायरेक्शन नहीं होना चाहिए कि वो और कुछ उसमें करने की कोशिश करे। इसी तरह लैंग्वेज भी इम्पोर्टेंट है। आप क्या लैंग्वेज में लिखते हो, जैसे कुछ को हम लोग का आजकल मैथ्स में न्यूमेरिकल्स जैसे होता है, तो हम लोग को रीड करके क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। वर्ड प्रॉब्लम वाले जो क्वेश्चंस होते हैं आजकल ज्यादा इंपॉर्टेंस उस पर दिया जाता है। सीसीटी टाइप का क्वेश्चन है, तो इसमें लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि रीड करने के बाद आपका लैंग्वेज इस तरह होना चाहिए कि स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड व्हाट ही और शी हैज टू डू, हाउ टू फाइंड आउट द आंसर। लेवल ऑफ डिफिकल्टी,
ये भी है, क्लास 1 का है तो उस एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए, उस लेवल के क्वेश्चंस होने चाहिए। और मैं क्लास 1 के लिए क्वेश्चन बनाऊंगी और 5 के स्टूडेंट बुक से कोई क्वेश्चन दे दूंगी, उस तरह का नहीं होना चाहिए। लेवल ऑफ एप्रोप्रिएसी, और ये बेस्ड ऑन आउटकम्स, आप क्या आउटकम ले रहे हैं उसी को अचीव करने के लिए उस तरह का क्वेश्चन आप देंगे। नेक्स्ट सर, रिलायबिलिटी सेम, मुझे लगता है थोड़ा बहुत सेम ही है। देखिए जैसे लेवल ऑफ सैम्पलिंग डोमेन, हाउ मच कैन बी असिस्ट, कितना हम करेंगे। नेचर ऑफ टास्क, क्वालिटी ऑफ एसेसर्स, यहाँ क्वालिटी ऑफ एसेसर्स क्यों दिया है, अगर आप एसेस कर रहे हैं तो आपका कितना सब्जेक्ट नॉलेज है वो भी इम्पोर्टेंट होता है। वो भी जरूरी है कि आप एसेसर है तो आपके पास भी उतना सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए जो आप बच्चे पे चाहते हो कि वो अचीव करना चाहते हो, उसका लर्निंग टारगेट आप रखे हो। नेक्स्ट सर, here does assessment take care of individual differences in ability, does assessment take care of individual differences in physical attribute। ये क्वेली मैडम ने भी ये वाला बात बोला था, फिजिकल एट्रीब्यूट वाला, कि जो इसका फिजिकल कंडीशन जैसा है, अगर हम उसको पहले भी कहानी जैसे आता था कि एक टेस्ट रख लेते हैं, पेड़ पर कौन जल्दी चढ़ पाएगा, उसमें मछली भी होता है, हाथी भी होता है, भालू भी होता है, तो जीतेगा कौन। इसी तरह का भी होता है कि सबके लिए सेम टेस्ट नहीं होना चाहिए, तो उसमें जिसका जो कैपेसिटी नहीं है वो कैसे करेगा। तो इस तरह का यहाँ इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी ध्यान में रखते हुए हम अपना स्ट्रेटेजी बनाएंगे, और फिजिकल एट्रीब्यूट्स को भी देखना पड़ेगा कि वो बच्चा फिजिकली कितना फिट है, जो ये हम जो क्वेश्चन बना रहे हैं सबके लिए सभी उस पर कर पा रहे हैं कि नहीं, ये भी दोनों को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये इसमें आ रहा है फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विटी, जो इक्वल मैनेजमेंट टाइप के सबके देख रहे हैं हम, ये दोनों फैक्टर्स को भी हमको थोड़ा सा ध्यान में देखना पड़ेगा। पहले एक आईआईटी में एक स्टूडेंट हुआ करता था जिसका हाथ पैर दोनों ही शायद थोड़ा सा उसका खराब था, पर उसका आईक्यू बहुत हाई था। तो उसको अगर हम बोलेंगे कि सेम क्वेश्चन देंगे और उसको भी वहीं बिठा के तुम टेस्ट लो, उसका आंसर लिखो बोलेंगे, तो वो तो नहीं कर पाएगा। पर वो लड़का जो है उसका आईक्यू लेवल इतना हाई था, वो मुंह में रख के लिख लेता था, और पर उसका आईक्यू लेवल कभी कम नहीं हुआ। लेकिन उसको उस तरह का फैसिलिटी दिया जाता था कि वो अलग बैठ के किसी ये में वो लिख, उसके जैसे सुविधा के हिसाब से दिया जाता था पेन पेपर, उस हिसाब से वो लिखता था। नेक्स्ट सर, ये थोड़ा पढ़ लेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग मैनेजेबिलिटी, नेचर ऑफ असेसमेंट टास्क, लेंथ ऑफ द असेसमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइमिंग ऑफ असेसमेंट। ये फ्लेक्सिबल, हालांकि हम लोग इतना जो फॉर्मल टेस्ट हम लेते हैं उसमें फ्लेक्सिबल नहीं रहते हैं, लेकिन जो हम अदर टेस्ट लेते हैं, जैसे हो गया मैंने पहले भी बताया, प्रोजेक्ट हो गया, सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी हो गया, कोई रोल प्ले हो गया, इस तरह का हम लोग कुछ भी करते हैं तो उसमें हम लोग फ्लेक्सिबल रहते हैं उस असेसमेंट में। इक्विपमेंट, पेंसिल, सब क्वेश्चन आंसर लिख रहे हैं और किसी के पास पेंसिल नहीं है तो नेचुरली वो अच्छा नहीं कर पाएगा, नहीं लिखेगा, या तो उसका आधे में उसका पेंसिल खराब हो जाएगा तो वो नेचुरली पूरा नहीं लिख पाएगा। तो इक्विपमेंट भी बच्चे के पास है कि नहीं वो भी मायने रखता है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स एंड वॉल्यूम ऑफ स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ स्टूडेंट्स भी थोड़ा सा ये होता है, जिस क्लासरूम में आपका 20 स्टूडेंट्स को आप आराम से बिठा के एसेस कर सकते हो, वहाँ आप 40 स्टूडेंट्स को बिठाओगे तो पढ़ाते समय भी हम लोग जरूर ऑब्जर्व करते हैं कि जिस क्लास में, जैसे आजकल एक स्कूल में 65-70 स्टूडेंट हो गए हैं, स्ट्रेंथ बहुत बढ़ गया है, मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, और जिस सेक्शन में वही 40 की स्ट्रेंथ के स्टूडेंट है वो
मैनेज करना कितना आसान है, अच्छा होता है। वहाँ ट्रांजैक्शन बहुत अच्छा है, जहाँ 70 स्टूडेंट्स है वहाँ के हिसाब से। हालांकि टीचर वही है, टीचर्स अच्छा ही पढ़ा रहे हैं, फिर भी डिपेंड करता है कि वहाँ स्ट्रेंथ 70 है और यहाँ 40 है। तो नेचुरली वो डिपेंड करता है वॉल्यूम ऑफ स्टूडेंट के ऊपर। नेक्स्ट सर, ये थोड़ा सा देखेंगे हम। कुछ असेसमेंट प्रैक्टिसेस के बारे में दे रखा है। देखिए, स्टैंडर्डाइज टेस्ट बोल रहा है, मल्टीपल चॉइस असेसमेंट टेस्ट बोल रहा है। Standardized test, a predominant method of classroom assessment used in summative tests. It measures student learning outcomes in terms of overall curriculum goal and standards. It is criticized. मैं थोड़ा सा बता दूं, standardized test हम लेंगे, it totally depends on knowledge. ये knowledge based ही होगा और इस तरह के टेस्ट में हम बच्चे को ओवरऑल असेसमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बच्चे किसी तरह भी अगर सीख लिया है, भले ही समझे नहीं समझे, अगर उसने मेमोराइज कर लिया है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट में हो जाएगा। ये मल्टीपल चॉइस टेस्ट भी उसका हो जाएगा। अगर उसने किसी तरह उसने लर्न कर लिया है, मल्टीपल टेस्ट में भी वो आगे आ जाएगा, वो अच्छा स्कोर कर लेगा। इस कारण से ये दोनों टेस्ट जो हैं थोड़ा सा क्रिटिसाइज में आते हैं। ये भी लिख रहा है, इट इज क्रिटिसाइज्ड फॉर इट्स हाई स्टेक नेचर, फेलिंग टू इवैल्यूएट की कंपोनेंट्स एंड देयर कॉम्प्लेक्सिटी। की कंपोनेंट्स जो है इवैल्यूएट करने के, सभी के सभी अचीव नहीं होते हैं। एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट है जिसपे बच्चा किस तरह किया, क्या क्या, उसके हम लोग को इवैल्यूएट नहीं करना होता है। हम अगर एक पोएम दे देंगे स्टूडेंट को, लर्न करके वो लर्न करके आ जाएगा, रट के आ गया, लेकिन वो कुछ नहीं समझता है। सभी जितने बच्चे अच्छे से लर्न करके पोएम बोल दिया, हम सबको मार्क्स दे दिए। और मल्टीपल चॉइस में भी ऐसे टिक टिक लगाया, हम सबको मार्क्स दे दिया। भले ही वो गलती से भी सही आंसर पे टिक लगा दिया, इवन देन वो स्कोर कर लेगा। तो ये असेसमेंट प्रैक्टिस जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट और मल्टीपल चॉइस असेसमेंट है, इससे बेटर कुछ दूसरा भी है। सर नेक्स्ट, ये देखिए एक नेक्स्ट आया, परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट प्रैक्टिसेस, जो अभी हमारे लिए बहुत जरूरी है इसको करना। हम लोग हालांकि कर भी रहे हैं, हम लोग ऐसा नहीं कि कर नहीं रहे हैं। ये परफॉर्मेंस देख के, अगर एक मिनट, परफॉर्मेंस देख के अगर स्कोर ग्रुप में करते हुए स्कोर कम भी हो गया, हम अगर जान रहे हैं कि उसका वो बहुत इन्वॉल्व था उसमें, तो कभी को लगता है कि वो इसको ये कर सकता है। और तो इसमें हम लोग क्या क्या एक्टिविटी ले सकते हैं, ये सब दे रखा है, जैसे कि एसेस, ओरल प्रेजेंटेशन, पोर्टफोलियो आगे भी है, कंप्यूटर सिमुलेशन, ग्रुप वर्क, रिफ्लेक्टिव डायरीज। आजकल रिफ्लेक्टिव डायरीज सेकेंडरी में है, जैसे किसमें रिफ्लेक्टिव डायरीज ने सेकेंडरी में लर्नर्स डायरी है। रिफ्लेक्टिव डायरीज आई वुड लाइक टू टॉक, अब कर लीजिए, आई विल डिस्कस ऑन दिस। थैंक यू मैम, थैंक यू। प्रोजेक्ट्स हम लोग दे ही रहे हैं, देने के बाद हम ना मैडम ना, एक करके लेके आ गया और हम उसको मार्क्स दे दें, वो सही नहीं है। उसका रूब्रिक्स होना चाहिए, रूब्रिक्स के हिसाब से प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करना चाहिए। और रोल प्लेस हम लोग क्लासेस में कराते हैं, रोल प्लेस भी। इससे क्या होता है, कुछ बच्चे जो एकेडमिक में अच्छे नहीं होते पर रोल प्ले में अच्छा करते हैं, उनको अच्छा लगता है ड्रामाटाइजेशन वगैरह में पार्टिसिपेट करना, उनको बहुत अच्छा लगता है। तो ये परफॉर्मेंस के हिसाब से भी हम लोग उसको एसेस कर सकते हैं। हाँ सर नेक्स्ट, भाई मैंने अच्छा पोर्टफोलियो मैंने जो बोला था, इसमें क्या क्या आप रिकॉर्ड करके रख सकते हैं पोर्टफोलियो में। Portfolio assessment is a systematic collection of student work that shows his or her learning process, progress and performance. ये सभी चीजें उसमें है, जैसे कि वो कैसे परफॉर्म किया, क्या प्रोग्रेस कर रहा है, और उसका जो प्रोसेस में उसने पार्टिसिपेट कर करके आगे बढ़ा है,
तो ये उसको सारा को नोट करके रखना होता है पोर्टफोलियो। हम लोग पहले पोर्टफोलियो भी बनाते थे तो उसका बायोडाटा लिख देते थे और कौन सा सीसीए में कब पार्टिसिपेट किया, किस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया, कभी कभी बिहेवियरल पॉइंट भी कुछ कुछ लिखते थे। तो इसमें सब कुछ लिखना होता है। इट इंक्लूड स्टूडेंट टेक्स्ट मॉडलिंग टास्क, डायरी नोट्स एंड रिटन डाटा ऑफ अचीवमेंट्स। उसमें सब कुछ लिखना होता है, नोट डाउन करके रखना होता है। Process oriented, authentic, integrated, interactive, and learner centered. This assessment can lead to increased motivation and learner autonomy. ये अगर प्रोसेस ओरिएंटेड है तो ये इसमें जरूर उसका स्टूडेंट मोटिवेशन इसमें थोड़ा ज्यादा ही ये होता है कि हम स्टूडेंट को मोटिवेट कर सकते हैं। अच्छा, e-portfolios can help develop digital competences, social competences, learning to learn, and problem solving competences. E-portfolio means naturally digitally use हो रहा है। e-competence उसमें भी हम लोग देख सकते हैं। social competence socially helpful कितना है और सबके साथ मिलजुल के रहना। सोशल आजकल जैसे बताया जा रहा है ना, स्किल्स होने चाहिए। लाइफ स्किल्स में एक सोशल स्किल भी बहुत जरूरी होता है। तो ये सब इसमें पोर्टफोलियो में हम एसेस कर सकते हैं। आगे सर। ये हमने जो पढ़ा था अभी प्रोजेक्ट बेस्ड, प्रोजेक्ट में कैसे कर सकते हैं। मैडम पीबीएल का सेपरेट सेशन है। हाँ इसीलिए हाँ एमडीपी भी है, इसकी कीजिए आप इसको। ठीक, आगे बढ़ाइए सर। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, सेल्फ असेसमेंट कैसे होगा और पीयर असेसमेंट कैसे होगा, जो कि अभी हमारे जो आने वाले असेसमेंट है हॉलिस्टिक असेसमेंट में, और उसके लिए जो हम हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे ये सब उसमें रिफ्लेक्ट किया जाएगा। सेल्फ असेसमेंट भी, पीयर असेसमेंट भी, ये सारे रिफ्लेक्ट होंगे उसमें, और इस पे हमको काम करना पड़ेगा। हमको इस तरह का कुछ स्ट्रेटेजी करना पड़ेगा जिसमें सेल्फ असेसमेंट हो और पीयर असेसमेंट भी हो। ठीक है सर, थोड़ा आगे बढ़ाइए, टाइम हो रहा है। ये मैडम ने बता दिया था एनईपी 2020 में जो है। आगे सर। हाँ, ये मैडम उसी का ही लिखा हुआ है एनईपी 2020। आगे सर, आगे चलिए। और एक आगे। हाँ, ये भी मैडम ने शायद वो जब समझा रही थी एनईपी 2020 में क्या आया है वही है। ये बोर्ड एग्जाम का है मैडम। हाँ ठीक, ये बस अपने आप को पूछना है यस और नो, कुछ क्वेश्चंस है। उसमें इतना ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा सा चाहती हूँ, ये हम लोगों ने जो पहले ही यस नो का क्वेश्चन पूछे थे सेम ही है इसमें भी। देखिए, स्टूडेंट असेसमेंट इंक्लूड मोर देन जस्ट इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। यस और नो आपको अपने आप को पूछना है। शुड असेसमेंट बी डन बाय मल्टीपल सोर्सेस लाइक पेरेंट्स, पीयर, सेल्फ? Should a child be assessed on physical, emotional, mental, and spiritual components? Should assessment methods be flexible? Should assessment method be more inclusive and equitable? Based on your own personal experiences or that of your child or student, do you think that current secondary assessment is holistic enough? अगर नहीं है तो we have to make it holistic. हमको holistic बनाना पड़ेगा। आगे बढ़ाओ सर, उसमें थोड़ा सा आगे और ये मैं बोल रही थी। ये चारों चीजें जो है, ये चारों कंपोनेंट को हमको एसेस करने हैं। जैसे मेंटल, फिजिकल एंड ये दोनों था पहले, इमोशनल, स्पिरिचुअल, इफेक्टिव वाला, ये चारों चीजों को हमको एसेस करने हैं। ओके सर, नेक्स्ट। ये कुछ नहीं है, कोर कंसेप्ट है। उसमें जो चीजें हमारा आएगा जिसमें हम उसको एसेस करेंगे वही है न्यूमरेसी, आईसीटी कैपेबिलिटी, क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग, पर्सनल एंड सोशल कैपेबिलिटी। ये जो मैंने बोला पर्सनल एंड सोशल कैपेबिलिटी हम अभी डिस्कस कर रहे थे, वो भी होना चाहिए। एथिकल अंडरस्टैंडिंग,
इंडिजिनियस अंडरस्टैंडिंग, ये इंडिजिनियस जैसे पहले जमाने में बच्चों को गुड़िया उड़िया से खेलना, मार्बल से खेलना सब मना करते, क्या इस सब से खेलते बोलते, आजकल फिर से वही ट्रेंड आया ताकि हम अपना कल्चर को समझ पाए, इंडिजिनियस जो भी है उसको हम सब समझ पाए, उसके तरफ भी थोड़ा सा सेंसिटाइज होना चाहिए। नेक्स्ट सर। तो ये फाइनल है, यही फाइनल जो है हम असेसमेंट जो हमारा होलिस्टिक असेसमेंट है, इस चारों को लेके पूरा चाहिए कि हमको इस पे असेसमेंट करें। जैसे कि पहले नॉलेज को किया जाता था, अब कभी कभी पहले भी कुछ था बीच में, उसमें हम लोग बिहेवियर को भी असेस करते थे, और गेम्स और आर्ट और डब्ल्यू ये सब आर्ट में जो जाता है उसको भी करते थे। पर अभी ये सभी चीजों को हमको लाइक नॉलेज, कैरेक्टर, मेटा लर्निंग, स्किल, ये चारों चीजों को, जो चारों डायमेंशन को हमको एसेस करना है। नेक्स्ट सर। ये एक मैच द टेबल दिया हुआ है, व्हाट इज आवर रोल, व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर, इसको बस मैच करना है और कुछ नहीं है। टीचर एज प्रोग्राम डायरेक्टर, टीचर एज अकाउंटेंट, टीचर एज गाइड, टीचर एज रिपोर्टर एंड टीचर एज मेंटर। आप चाहो तो इसको मैच कर सकते हो। टीचर एज प्रोग्राम डायरेक्टर क्या होगा, थोड़ा सा पढ़िएगा। अच्छा टाइम हो रहा है, मैं इसका आंसर दिखा देती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा और रिपोर्ट कार्ड भी थोड़ा दिखाना है। डोंट वरी, बिकॉज इनका जो प्रेजेंटेशन शिवप्रिय सर का ये सेकेंडरी प्राइमरी मिला करके है। रादर आप मुझे जस्ट 3-4 मिनट दे तो मैं जो एरिया है होलिस्टिक असेसमेंट का वो समझा दूं। आई विल जस्ट ऐड टू इट। यस मैम, यस मैम, जो हमारे प्राइमरी के लिए इम्पोर्टेंट। श्योर मैम, श्योर। सर ये लास्ट ही है सर। हाँ ये आंसर है। Yes, ma'am, you can proceed, ma'am. Query, ma'am. Friends, the thing is, this presentation is from ZIT. So when ZIT something is prepared, वो जब primary, secondary दोनों में लेना रहता है, दोनों का सोच के करते हैं। Madam has done justice to the presentation. I would just like to pinpoint. Assessment is clear to you. Shift in assessment is clear to you. Holistic assessment. What are the holistic assessment में other than pen and paper test, what you can do or what you should do? It is going to come in paper, means in black and white to us very soon. But we should gear up for that. तो हम किस तरह से अभी से हम शुरू करेंगे, then we won't face any problem. Just a minute. 1 minute. Can you see my screen? Can you see my screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. How we can assess the child beyond pen and paper test? Portfolio. Portfolio means whatever creative work the child does, you keep on putting in it. It may be drawing, it may be craft work, it may be its worksheet. करते हैं ना हम? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. और फिर उसको साल के अंत में बच्चे को दे देते हैं, है ना? But no, we have to look into it. If the child's creative aspiration should be admired, should be graded. आप ये सवाल करेंगे हम कहाँ दे grade? So friends, it is going to come. It is, you have to mentally gear up for that कि pen and paper में हमें ये भी करना है. Anecdotal record. Anecdotal record means not on daily basis. A child is doing some very good work or very bad work. Both need to be recorded in the anecdotal record.
helping someone, taking जो मैडम बता रही थी, taking leadership somewhere, okay, reaching out to someone, all these has won any award in inter-school competitions, all these are checklist, listing skill, behavior का इसका checklist में बना के रखना है, हमें prepare करके रखना है कि कौन कौन सा बिहेवियर टिक टिक लगाते जाना है, बच्चे ने ये बिहेवियर अच्छा किया, बुरा किया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ rubric should be ready for anything you do. लिटरेसी लॉग हम करवाते हैं, हम जैसे इंग्लिश का हिंदी का स्क्रैप बुक बनवा लिए, वी कीप ऑन गेटिंग पिक्चर्स पेस्टेड, राइटिंग समथिंग, anything related to literacy, any creative thinking, any collection, that is called literacy log. Okay, these guided survey reports, PBL sir will conduct it tomorrow, project based learning. Guided survey reports means you give small topic and ask the children to survey how many people are affected in dengue in your area, why they are getting affected in dengue. आपने छोटा सा क्वेश्चन दे दिया, आपने गाइड कर दिया, कुछ क्वेश्चंस बच्चे को दिया, जाकर के मोहल्ले में 5-6 घर से पूछ करके लेके आओ. So you are guiding the children to do survey. That report can be collected. Then PBL is there. Then concept map. अगर बच्चों से concept map, graphic organizers क्लास में बनवा रहे हैं, that can be used for assessment. Oral presentation, oral reading, oral fluency means recitation and anything. Writing assignment आप कुछ दे रहे हैं, क्लास में दे दिया अचानक कुछ भी, that can be used for assessment. Poster presentation, poster दे रहे हैं बनाने के लिए बच्चे को. Peer review already discussed कि peer will review each other, कोई ऐसा टास्क दीजिए. Peer review तरीका है, उतना टाइम नहीं मिला मुझे समझाने का. तो peer assessment, self assessment, बच्चा अपने आप को assess कर रहा है. I failed to understand this, I understood this in once, ये 2-3 बार समझाने पे मैं समझा. तो child is self assessment भी record, उसका भी तरीका होता है मेंटेन करने का. Then formal test हम ले ही रहे हैं, group work करवा रहे हैं. All these area can be taken up as for, ये मैंने 15 ही दिया है, कुछ मैडम ने दिया, उसमें से एक था क्या बोलते हैं रिफ्लेक्टिव डायरी, राइट. रिफ्लेक्टिव डायरी का ही is nothing but a self assessment. The child reflects back while doing this lesson, I could understand this, I could complete this is the area not. So these are the way you have to assess your child. This is multiple assessment. This is holistic assessment. इसमें सारे एरिया आ जा रहे हैं. Followed. Now self assessment बच्चों से कैसे करवाना है? Okay. Already I've told. Peer assessment कैसे करवाना है? Peer provides a structured learning for students to provide feedback to each other on their work. It helps students to develop lifelong skills in assessing and providing feedback. तो आगे करना ही है. The child joins a corporate firm. The child needs to go for peer assessment. तो बच्चों को सिखाना है, चूंकि छोटे बच्चे हैं, हमें सेल्फ असेसमेंट और पीयर असेसमेंट के लिए बच्चों को क्वेश्चंस बना के देना, गाइडलाइंस देना है. सो आपके लिए इन रिटन आ जाएगा. राइट नाउ यू हैव टू शिफ्ट मेंटालिटी टुवर्ड्स दैट, नॉट ओनली पेन एंड पेपर टेस्ट. ये सब तो आप कर ही सकते हैं. All these we can start very much from next session, isn't it? जो मैंने 15 बोला, इसके अलावा और क्या हो सकता है? बोलिए मैडम ने जो कहा, मैंने जो कहा, इसके अलावा what else can we use for assessment? Holistic and multiple assessment के लिए और क्या कर सकते हैं? Any other example, please? नीलम. अभी तो वो भी होगा. नीलम मैडम. Discussion group discussion. People who can contribute must contribute. Neelam, Seema Singh. अब चाय. चलो, पूछ रही मैं, दोनों से देख रही है मुझे. ठंड नहीं है सीमा मैडम, बता सकती हूँ. मैडम मैं बोल सकती हूँ? हाँ रत्ना मैडम प्लीज. कुछ बच्चे जो होते हैं माने स्कूल के अलावा बाहर जो कॉम्पिटिशंस होते हैं उसमें भी वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं. तो उन बच्चों को वही मैंने कहा एनेक्डोटल रिकॉर्ड में जाएगा. मैंने कहा वो मैडम गुड. तो उसको हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं उन बच्चों को. बिल्कुल क्लास में एनेक्डोटल रिकॉर्ड में वो सब जाएगा मैडम.
बच्चा स्कूल में किसी कंपटीशन विन किया, वो हम नहीं रखते। अभी जो मैडम बोली कुछ पहले दिन रिपोर्ट कार्ड में आया था, बट दैट वाज नॉट ग्रेडेड। यहाँ पे आपको ग्रेड करना है, वो टाइम आ रहा है, यू ओनली शिफ्ट फ्रॉम देयर। ओके, सो बिल्कुल साइंटिफिक टेम्परामेंट शुड बी अप्रिशिएटेड। जिस तरह के सीरियल्स आ रहे हैं ना, और मम्मी लोग के पास बच्चे बैठ के देख रहे हैं, दे आर टेकन बैक टू 3-4 सेंचुरी पीछे लिया जा रहा है। सो इसलिए साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना बहुत जरूरी है। अगर बच्चे में है, इंक्लिनेशन है, बच्चा द चाइल्ड इज डूइंग एक्सपेरिमेंट वंडरफुली, सो एवरीथिंग दैट इज द रीजन इट इज कंटिन्यूअस, it is regular, it is formative. So I hope at the end of the day, what is assessment concept is clear to you. What is expected of us is clear to you. Holistic assessment is clear to you. What you can take up is clear to you, right? This presentation also I will share along with ZIT. ये तो मेरा बहुत पहले का किया हुआ, अभी तो ZIT ने भी ट्रेनिंग करवा दिया है। So please just shift your mentality. सबसे जरूरी है anecdotal record हर बच्चे का maintain करना. You have to gear up for that. Thank you. Yes, over to Preeti Anand Rajankar. Go for the next activity. Yeah, thank you, ma'am. Am I audible? Yes, ma'am. So I think all the topics for today are over. Now it's time for your assignments. Excited for your assignments? Okay, that's the rule that you have to work. We have also made some assignments out there when we were doing the training. So it's still, I'd like to ask Partha sir, because he had made this thing. Once again, he will explain what to do. Just once, because you have learned assessment as of and for learning. So now what to do, you please listen carefully. After that, if you have any doubts, Vivekan is here, all the resource persons are here, they can clear the doubts. Before you work out, please clear each and every doubt of yours, ताकि आप जो बनाए वो सही बने. Please do not hesitate, it is a very tricky place here, गलती हो सकती है, कभी कभी बहुत सारी चीज मर्ज भी हो जाती है, राइट? तो आप लोग उसकी चिंता ना करें, जस्ट आस्क wherever there is a problem, and this is very important, this assignment. So please make this assignment and submit it. You make small, I hope you have made your WhatsApp groups, small WhatsApp groups of your group, तो उसको बना लीजिए आप, हेल्प होगा. ये पार्थ सर झंकार से प्रेजेंट भी कर रहे हैं. पार्थ सर, if you can explain once more. Yes, madam. So today's group work, please understand it very carefully. Design 3 type of assessment exercises in the subject mentioned below. आपको 3 तरह का assessment exercise हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको बनाने हैं. आप जानते ही हैं assessment of learning, for learning, as learning, ये 3 है. तो कोलकाता 1 क्लस्टर ये क्लास 3 के इंग्लिश बनाएंगे और 5 के मैथ्स बनाएंगे. 3 इंग्लिश में कोई भी एक टॉपिक ले सकते हैं फॉर असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, या तो अलग अलग टॉपिक में भी ले सकते हैं. I have one suggestion, sir. Partho sir. Yes, madam. Let them take up only one lesson. Okay. That will make them more strategic. ठीक. तो आप लोग कोई भी एक लेसन लीजिए 3 इंग्लिश से, और उसमें 3 अलग अलग एक्सरसाइज बनाना है. उसमें एटलीस्ट यू कैन टेक 5 or 10 क्वेश्चंस. और कोलकाता 2 क्लस्टर के लिए क्लास 3 हिंदी और क्लास 4 EVS दिया गया है. कोलकाता 3 क्लस्टर के लिए क्लास 3 मैथ्स और क्लास 5 हिंदी. दुर्गापुर क्लस्टर के लिए 3 EVS और 4 हिंदी. कुछ बिहार के लिए 4 इंग्लिश और 5 EVS. खड़गपुर के लिए 4 मैथ्स एंड 5 इंग्लिश. और सिलीगुड़ी क्लस्टर के लिए 3 इंग्लिश एंड 5 हिंदी. ये जो आप बनाएंगे क्वेश्चन पेपर, ये क्वेश्चंस जो है वर्ड फॉर्मेट में बनाना है. और वो इंग्लिश 5 हिंदी
कैलिब्री फॉन्ट में बनाना है और साइज 12 होगा। पीपीटी अवॉइड करेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि वर्ड फॉर्मेट में देंगे तो वही हम लोग का वो कंपाइल होके जाएगा। मेक द डायरेक्शन क्लियर, अवॉइड करेंगे नहीं, दे हैव टू गिव इट इन वर्ड फॉर्म ओनली। हाँ, तो पीपीटी जो है वो हम लोग रेक्टिफाई यहाँ पर लिखा हुआ है, वर्ड कुछ भी है उसमें वर्ड फॉर्म में, वर्ड फॉर्म में करना है। पीपीटी नहीं बनाना, वर्ड फॉर्मेट में बनाना है। ये आज का आपका असाइनमेंट है। असाइनमेंट है ये। for cluster 3. क्वेश्चन पेपर। If you want Yes. clarification, you can ask. Tomorrow you have to present it in the first session only. We will call out the class group name, cluster's name, and you will have to show us the paper what you have made. And accordingly, the resource persons will help you out if there some rectifications are to be made. असेसमेंट हिंदी का इंग्लिश। और एक बात है, 10 questions can be agree for 10 questions. Yes, ma'am. Query, ma'am. हम जानते हैं Do we agree for 10 questions for each subject? हाँ 10 क्वेश्चन है ना? तो कोई का 4 हो जाएगा, बाकी 3. तो 10 questions will be better. It will make a good document. Right? Any questions from your If side? they don't agree, will you make it 2? Right? We are talking, I know, there should be ambiguity in a test. Right. There should not be an ambiguity. There should be a clarity. Yeah. Why we are promoting ambiguity? So 10 questions, 10 questions. Right. Okay. Anything else? हाँ, और एक और Anyone who has have you understood the task assigned to you, or do you need any more explanations? Yes. Right. Milke. Yes. More the merrier. All the. लेकिन मतलब Cluster 3, कोलकाता cluster 3. 3 और एक Subject and शायद class. ज्यादा होगा। मैंने कहा more the merrier. Questions 10 minimum है। 10 minimum है। Right. Right. Yes, बनिक सर, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, कोलकाता क्लस्टर का जो सब्जेक्ट और क्लास है वो रिपीट करने से अच्छा होता है। एक है 3 मैथमेटिक्स और 5 ईवीएस शायद। कौन सा सर? कोलकाता 1? हाँ, कोलकाता 3। सर एक बार प्रेजेंट कर दीजिए। क्लास 3 मैथमेटिक्स, क्लास 5 हिंदी। सर व्हाट्सएप ग्रुप में दिया हुआ है, शेयर कर दिया गया है, यू कैन सी। व्हाट्सएप ग्रुप में। ओके, थैंक यू। तो सेशन का रिपोर्ट ड्राइव में अपलोड करना है, लेकिन नहीं वो नहीं, लेकिन रिपोर्ट रिपोर्ट 1 डे 1 का रिपोर्ट वो तो पढ़ना पड़ेगा कल आपको, वो पढ़ना पड़ेगा। That's a different thing. Session report is different. कल का रिपोर्ट कल होगा। वेरिडिक्टरी के सामने या पहले पढ़ लेंगे हम लोग। Regarding attendance for the afternoon session, only 56 has filled up. So, dear participants, kindly fill attendance. Second half also, sir. Yes, sir. Sir, second half 56. हाँ, देखना पड़ेगा who have not. no, first session completed only 2 has not filled up. नहीं, जैसे सीमा मैडम का नहीं हो रहा था, सीमा सिंह मैडम ने मुझे भेजा था स्क्रीनशॉट। Okay, उनका फील्ड अप है। अभी फर्स्ट सेशन में 2 पार्टिसिपेंट फिल अप नहीं किए हैं। नाउ इन सेकंड सेशन, आफ्टरनून सेशन, ओनली 56 हैज फिल्ड अप। सो डियर नहीं तो रिलीविंग नहीं मिलेगा। यस, क्या अटेंडेंस करेंगे। अटेंडेंस तो भर दी थी, तूने भर दी थी ना मेरी फर्स्ट सेशन की, सेकंड की सिंह सर म्यूट कीजिए। हेलो, मैं डीसी टूडू बोल रहा जो हूँ। टेक्नो साहब ने उनको बड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए यस टूडू सर, यस सर, मैं हूँ, लेकिन फिल आप नहीं कर पा रहा। रुकिए, मिल नहीं रहा है। मैंने आपसे कब कहा? सर व्हाट्सएप ग्रुप में देखिए लिंक है।
मिला सर आपको? म्यूट है सर आपका। मैं खोज ही रहा अनम्यूट हूँ, कीजिए। मैं खोज ही रहा हूँ, इसीलिए मेरा दिक्कत है, और कुछ नहीं, हो जाएगा अभी। यस प्रीति मैम, अगर वो असाइनमेंट का जो मिला है ना 10 क्वेश्चन एटलीस्ट 3 टाइप्स, तो उसका एक कोई दूसरा चैप्टर से एग्जाम्पलर कुछ 1 minute सर, मैं वही that is what we asked you, have you followed or not? इसीलिए आप लोगों से बोला गया। Okay, जी मैम। let me give explanation. Suppose I take up any lesson, name any lesson, कोई भी लेसन आप बोलिए, किसी भी इंग्लिश का लेसन बोलिए। क्लास 5 में Okay. Climb together. Sing a song of people. Sing a song of people. Poem. Okay. Sing a song of people. Suppose when I complete lesson पढ़ा दिया, whatever questions is based on reading comprehension में मैं दे रही हूँ। At the end of the lesson, वो सब ऑफ में आ जाएंगे। उसमें मैं सेल्फ असेसमेंट क्या दे सकती हूँ? Tell me. Self assessment, what kind of lesson I can give? What kind of questions? अच्छा प्रीति मैडम, यस मैम, हम लोग बनाए थे इंग्लिश, वो है क्या? हाँ हाँ है मेरे पास, मैं वही सोच रही थी। वो एक डाल देंगे हम लोग। इंग्लिश वाला शेयर कर दीजिए। हम लोग एग्जाम्पलरी शेयर कर दे रहे हैं। हम लोग रिप वैन विंकल का बनाए थे। हम लोग रिप वैन विंकल का बनाए थे। उसको छोड़ के तो फिर आप लोग बात वाला दूसरा वाला वो तो छोड़ना ही है। नो कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ठीक है, उस लेसन को लेना ही नहीं है, उस लेसन को मत दीजिएगा। आप उसको इसलिए हम शेयर कर दे रहे हैं, सो दैट यू विल गेट एन आइडिया। We will share it, right? Under off, for and as. Off means after completion of the lesson, whatever you take up. For means while the lesson is going on and side by side you are assessing. As means you allow the child to assess himself, you allow the peer. तो जो भी peer work दे दिए, जो भी self assessment का दे दिए, वो self assessment प्लीज देखना जरूरी है। इसलिए मैडम वो शेयर कर दीजिए, ठीक है, जो हम लोग का था, and go through it, you will have an idea. Give it a Ma'am, one query, we have to make 10 questions for each for the assessment of the assessment and नहीं तब हम लोग, आप लोग हमें मर्डर कर दीजिएगा मैडम, इतना नहीं बोलेंगे। total 10 questions. Total 10. Okay, thank you so much. And 3 4 3. 4 in which assessment? Self assessment. Because that is the most important as per हमारे NEP 2020. हो गया clear? No more, we are giving it, you go through it. Okay. लेकिन वो नहीं, क्लास में एक बच्चा बोल दिया, सेंटेंस सुना है, ब्यूटीफुल से सेंटेंस गिव एन एडजेक्टिव, एक ने बोला ब्यूटीफुल फ्लावर, दूसरा आ जाएगा ब्यूटीफुल ड्रेस, ब्यूटीफुल बुक। होता है कि नहीं केवी में? होता है ना? तो बच्चों जैसे मत कीजिए। एकदम करेक्ट एग्जांपल है ये। एकदम करेक्ट एग्जांपल। Just get a concept from that. Just get the concept. So assignment clear. No doubt. आज के सेशंस में से any questions? बेझिझक. If you are having any doubt, ask us. We are not gods and goddesses. Someone who trains you is not free of flaws. तो हो सकता है somewhere we have as a teacher, अगर हम we fail to make our children understand, as a trainer also we can make our trainees fail to understand. So you always have that opportunity to question back. Yes, ma'am, I have failed to understand this part. So please open up if you have any doubt. Either we are very good trainers or we are worst trainers. Right, Preeti? No reaction का मतलब वही होता है। ये है हमारे, हम लोग कितना बढ़िया से बनाए थे, देखो। हालांकि हम पीपीटी बनाए थे प्रेजेंटेशन के लिए, वर्ड फॉर्म में किए थे। Am I audible? Yeah.
These are the papers that we made there. This side is for assessment for learning. You can see the question. I'm just showing you. If you have any questions, you can ask. We have used concept map also. आपने देखा हमने यहाँ Venn diagram use किया. अगर कुछ पूछना है पूछ सकते हैं, तो इसलिए मैं दिखा रही हूँ. Next slide में. Next slide. As learning. And these are for learning. Preeti, go to 11th slide. Off learning, sorry. Ma'am? Go to 11th slide. As learning wala. 11, yes. Yes. What I know, what I want to know, what I learn from Reef's life. What I know, life interaction, Reef's interaction, or his interaction with children and neighbor. What I want to know, his what I learned. What I learned from here, the child assessing himself. Okay. Okay. Chaliye, madam. Yes. Scroll down. That was the last one. This is for off learning. So these were the slides. I hope it helped you. और ये हम लोग डाल देंगे ग्रुप में. Any other questions? Okay, Partha sir also told you about MDP, isn't it? MDP के बारे में सर ने बताया होगा. ना MDP तो कल ग्रुप वर्क रखने के लिए. I don't know पार्था सर बोले कि नहीं. मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ. कल मैडम का सेशन है MDP का, कुहेली मैम का सेशन है. तो आप लोग अपनी तरफ से एक MDP अपने स्कूल का रेडी होगा, आप लोग के पास अपने बनाया है, रेडी रखिएगा. उसके बाद जब आप कुहेली मैम का सेशन देखेंगे, if you think that yours is the nearest to her or it is correct, then one of you please present it before us so that we can. No, madam, one from each group has to present. They have to select the one which is more authentic. That's it. So सारे group में मिल के बैठ के they will decide which one to present after your presentation. Last में है ना? हाँ. So that also you keep it with yourself. उसको अच्छे से PDF format में या फिर कैसे भी रखिए उसको ताकि आप present कर सकें. Group wise means madam 3 MDP will be presented. 3 groups हैं या 7 है इसमें? हाँ? 7 है शायद ना? नहीं, they have combined 3 group है. 3 group. 3 group about cluster 7. So 3 MDP will be presented. If will क्लस्टर्स वाइज होता है पूरा तो क्लस्टर वाइज होता चलता ना शंकर सर. हाँ. मुझे लग रहा है MDP क्लस्टर वाइज ही था. क्लस्टर वाइज हो जाए तो ठीक ही है, नो इशू. साथ हम ओके. हाँ, क्लस्टर वाइज होने से भी चलेगा. क्लस्टर वाइज होने से ना वी कैन फाइंड आउट हाउ दे आर गोइंग, ताकि वो अपना FLM मीटिंग में उसको सुधार ले. 7 MDPs we have to see, cluster wise 1. So you select who will present after madam tells you about it. So the nearest after or before? After.
after. So that you can understand कि this one is perfect for presentation. Otherwise कहीं कुछ छूट गया है तो वो नहीं दिखाने से अच्छा है. Either you can make this. So tomorrow that also is a work. You decide one MDP has to be prepared. I mean, it is already prepared in every school. So just present it before us. So that will be for tomorrow. And for today, if any questions are there, so yeah, we have still some time, I think. It means tomorrow participant will present two activity. First one is task, assessment task, and MDP. First session of the day, everyone will show us the question papers that they have made, and the last part when madam will take. Madam's session is not the last session, I think. Penultimate session. After madam's session, there will be again. No, yes. After her session, we can take this MDP. This one we can take. Then last session is mine. My session is very small one. So I after think yours only they will present. after Group mine? work is at the end. Timetable group work end में है. So MDP के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा. Only you are picking up the best one from your cluster and presenting it. Clear? So after that, then valedictory will be there and report. PDF ready. अपने cluster का best चुन लो, PDF ready करो बस. That's it. और अभी जो है ना आपको जो छोड़ दिया जाएगा group work के लिए. Correct. 1 hour for group work. Question paper बनाना. And how you utilize your time is your lookout, but हमें सुबह question paper मिलना चाहिए. हम आपको on camera check नहीं करेंगे. Please stick to the directions given by Partha sir. A font and size, all those things. Please stick to it. It will be easier for us to compile them. And please submit everything in the. How I told time का. How मतलब time को कैसे utilize करेंगे? ऑफ करके रात के 8 बजे बनाएंगे. That is their lookout, but हमें सुबह मिलना चाहिए. बिल्कुल. Yes. So, is there any question left for us? Otherwise, we can wind up and leave the participants for their work. From the resource persons, anything you have to say? Very ma'am, no? No. Sir? Partha sir? No, madam. No, it's clear. Okay. So then, participants, let's wind up for today. You can have your own meetings. Thank you. Thank you, ma'am. Priti madam. Yes, sir. Yes, sir. If you share the Google link where all the participants have fill up their details. 1 minute. Preeti madam, dam microphone. Oh, sorry. दम की प्रीति मैडम. हाँ. नहीं, मैं कह रहा था कि वो जो जहाँ गूगल फॉर्म वो गूगल लिंक जो वो फिलअप किए है ना, जहाँ पर नेम है और फिर फोन नंबर है, वो अगर शेयर कर देंगे तो वो आपस में ग्रुप बना सकते हैं उस फोन नंबर देख के. ठीक है. मैं ड्राइव वो लिंक शेयर कर देती हूँ. ठीक है, फाइन. अमीनारुल सर, ग्रुप बना लीजिए, थोड़ा डिस्कशन. देखिए अब ये है ना, जैसे हमने वो किया ना, आवाज तो आ रही है. हम दोनों का पास हो रहा है. अच्छा इधर. रिसोर्स पर्सन हम लोग स्टे बैक करेंगे कि मैम क्या करें? इन लोग को जाने दीजिए. we'll have हम लोग all other participants are requested to leave the group, please. चाय पीजिए, अपने अपने छोटे छोटे ग्रुप में जुड़ जाइए, काम शुरू कर दीजिए. Thank you, ma'am. Thank you.